Students, good evening everyone. ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ କ୍ଲାସେସକୁ। ପିଲାମାନେ ତମର ବିଏଡ୍ ରେଗୁଲାର 2025 ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଫିଜିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟା ମୁଁ କଭର କରିଛି। ତ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଫିଜିକ୍ସ ଅଲରେଡି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଭର କରିସାରିଛି। ତ ଆଜି ଆମେ କଭର କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନମ୍ବର 10। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ତମର ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସେ କ୍ଲାସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେବି। ଏଇ ବର୍ଷର ସିରିଜ ସହିତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଫିଜିକ୍ସ ସିରିଜ ଗୁଡାକ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବେ ସେଗୁଡାକ ବି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଲେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିବା। ତ ଆମେ ଯିବା ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 114 ଯେମିତି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 115 କରିଥିଲେ। क्वेश्चन नंबर 115 एट का कम्प्लीट करेंगे फ्रॉम दिस लेक्चर द हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इन 1 hour by a furnace whose temperature is 3000 Kelvin is ଆମର ଗୋଟେ ଫର୍ନେସ୍ ଅଛି ସେ ଫର୍ନେସ୍ ର ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଦେଇଛି 3000 ଡିଗ୍ରୀ କେଲଭିନ ଦେଇଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଫର୍ନେସ୍ ରହିଲା ହେଲା ସେ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ହେଲା ସେଇ ଫର୍ନେସ୍ ଯୋଉଟା ସେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ୟୁନିଟ୍ ଏରିଆ ପ୍ରତି କେତେ ହିଟ୍ ରେଡିଏଟ୍ କରିବ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲୁ। এই যে ଆମ ପାଖରେ ଫର୍ନେସ୍ ଅଛି ସେ ଫର୍ନେସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଇଛି ଫର୍ନେସ୍ ର ଟେମ୍ପରେଚର ଆମେ ଦେଇଛି 3000 କେଲଭିନ ତାହେଲେ ସେଇ ଫର୍ନେସ୍ ଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ୟୁନିଟ୍ ଏରିଆ ପ୍ରତି କେତେ ହିଟ୍ ରେଡିଏଟ୍ କରିବ ସେଇଟା ପଚାରିଛି ବୁଝିପାରିଲ। जो हीट रेडिएट पर यूनिट एरिया का कहां से रिलेटेड है स्टीफन्स लॉ से रिलेटेड तो सेटा में लिखिबा अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ जब हम पुट करला आंसर कोन होता है E is equal to sigma T to the power 4 नाम एटा जानि E is equal to sigma T to the power 4 बुझि पाल हला तो एटा कोन पिला अपने हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम बुझि पाल हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम माने गोटे सेकेंड रे केते हीट रेडिएट को तार फॉर्मूला लेति बुझि पाल हला तो हम जदि भार करबा जदि मोडा भार करबी हीट रेडिएटेड हला इन 1 आवर तो 1 घंटा रे पिला ने केते हीट रेडिएट हिट्स को हम बाहर करबी सेठी कोन करबी रे तार फॉर्मूला सिग्मा टी टू द पावर 4 गुणन टाइम 1 घंटा केते सेकंड पिला माने 3600 सेकंड त सेठी हम 3600 सेकंड गुणन ले कोन पाइ देबी रे कि गोटे घंटा रे जे टोटल केते हीट रेडिएट छै पाइ देबी केते लोग कहते हैं सिग्मा रे केते देछ रे 5.7 गुणन 10 टू द पावर -8 टी केते रे पिला ने 3000 त 3000 टू द पावर 4 गुणन 3600 गुणन 3600 एक दिन पिला ने सिंपलीफाई करिला हला एक दिन में सिंपलीफाई करिला केते मिल जिवो रे हमको मिल जिवो इज इक्वल टू 1.7 into 10 to the power 10 हला 1.7 into 10 to the power हला कोन दिबा ऑप्शन नंबर ए पर तो ना तो ऑप्शन नंबर ए के नंबर करेक्ट आंसर आ गया देखो so if the temperature of the sun were increased from T degrees T to 2T and the radius increased from R to 2R then the ratio of the radiant energy received from the earth so what is the previous impedance तो प्लान कहले जल्दी में कोन दे the sun ର temperature ଟା T ରୁ 2 ହେଇଗला ହେଲା ଆଉ sun ର radius ଟା भी R ରୁ 2R ହେଇगला ତାହେଲେ ପିଲା ମାନେ ଇନିशियली R ଯେତିକି एनर्जी रिसीव କରୁଥିଲା ଆଉ ଏବେ R ଯେତିକି एनर्जी रिसीव କରିବ ତାର ରେशियो କେତେ ମୁଁ बताइछि ବୁଝି ପାରିଲେ ହେଲା ସେ ରେशियो ଦେଇଛି କୋन ରେ ଯଦି sun ର temperature ଟା ବଢିକି T ରୁ 2 ହେଇଯିବ थोड़ा sun ର radius ଟା बढି যদি R ରୁ 2R ହେଇଯିବ ताहले हमर सन जो एनर्जी टा रिसीव करूछि ना 8 हम जो सन पाखु 8 जो एनर्जी रिसीव करूछि पूर्व के एनर्जी रिसीव करू एबे के एनर्जी रिसीव करूछि तार रेशियो इनको से बुझे पानी बेटा बिना से स्टीफन्स लॉ क्वेश्चन हला तो बिना नामे जानि छथि अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ तो स्टीफन्स लॉ जदि हम प्रूव करबी एटु कोन जानि छै द हीट रेडिएटेड बाय सन देखो बिना कि हमर सन जति हीट रेडिएट करियो सेति हीट कोन करे 8 रिसीव करियो हमर स्टीफन्स लॉ अनुसार heat radiated per sun radiated by sun हमर ये कोन पिला माने हमर केते हीट रिसीव रेडिएट करि sun हमर केते हीट रेडिएट करि सेटा केते लिखि करियो यार E is equal to sigma A T to the power 4 तो एबे तो हमर को सिलुट बार या पूर्व जो साले केते sigma T to the power 4 एबे काहे लिखि sigma to the power 4 सेटा हम जेतले यूनिट एरिया पर तले एटम को देछि कोन एटम के यूनिट एरिया पर पता तो sun हमर टोटल केते हीट रेडिएट करि सेटा केते लिखि करियो sigma A to the power 4 कुछ करला अब ए कोन हेला एरिया अब प्लान सन टा जेतु स्फेरिकल रहिला प्लस सन टा जेतु प्लान स्फेरिकल प्लस स्फीयर एरिया केतरे गोटे स्फीयर एरिया 4/r स्क्वायर बुझि परछो तो एरिया इज प्रोपोर्शनल यदि r स्क्वायर एरिया टा कौन सा प्रोपोर्शनल प्लान r स्क्वायर से प्रोपोर्शनल ताला हम ये लिखि परिबा तो e इज प्रोपोर्शनल सिग्मा हला गोटे कांस्टेंट r स्क्वायर टू द पावर 4
जो एनर्जी रेडिएटेड फॉर सन जो एनर्जी प्लांट रेडिएट करूची से हमर रेडियस और टेंपरेचर सेंटर केमिकल रिलेटेड रे इज प्रोपोर्शनल विथ r स्क्वायर p टू द पावर बुझी पालो हला कोन देइछ रे देइछ इनिशियली तार रेडियस थिला r एबे हे जाइछ प्लांट के 2r इनिशियली तार टेंपरेचर थिला t एबे केते हे जाइछ रे 2t बुझी पालो तो हम पिला नाम जदि लिखिबा तो इनिशियल मन कते एनर्जी थिला e1 एबे हे जाइछ मन कते e2 हम ए बा कोन लिखि परिबा रे e2 बाय e1 is equal to r2 to the power 4 p2 to the power 4 divided by r1 to the power 4 p1 to the power 4 sorry r1 the square p1 to the power 4 that means square editor square here to the power 4 हम लिखि करी बुझियन r2 के तरह r2 होला 2r से लिखि दबा 2r the square हला 2t to the power 4 divided by r square p to the power 4 divided by r square p to the power एटा तो गुणे 0 स्केलर 4 0 4 केते 16 हला 16 आ सु पिलाने कटि दिबो केते 64 हम पिला माने हमर एनर्जी केते 64 टेंस पड़ी गल बुझि पारलो हमु सेटा से पचाइ दिला कि हमने एबे जो एनर्जी रिसीव करछन सेटा पूरा एनर्जी केते गुण दिला केते गुण होला 64 गुण होला ऑप्शन नंबर डी जेला तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एटी कोन द हीट गिवन टू योर बॉडी व्हिच रेज द टेंपरेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो पिलाने को इधर है तो हीट गिवन टू योर बॉडी व्हिच रेजेस टेंपरेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमर बॉडी को हीट दोछले जोटा कोन छरे हम बॉडी को किछि अमाउंट हीट दोछले जोटा कोन करछि तार टेंपरेचर के अकॉर्डिंग पढ़ि दोछि ताको कोन करते वाटर इक्विवेलेंट कहले वाटर इक्विवेलेंट को जाय ना थर्मल कैपेसिटी को जाय ना स्पेसिफिक हीट को जाय ना टेंपरेचर ग्रेडियंट एटा प्लांट पर सस्ता सुंदर मजबूत क्वेश्चन है तो उमर तुम आंसर कहबो तते हम कहू जे एटा कोन कहले रे एटा प्लांट थर्मल कैपेसिटी कोन कहते थर्मल capacity. The art radiates in the infrared region of the spectrum. The spectrum is correctly given by this. तो पिलाने कौन कलर हम art to radiation दोची. तो पिलाने infrared region का spectrum उनका कुछ भी radiate दोची. ये जो spectrum से radiate दोची, सेटा पिलाने कोई लॉट है, सेटा को correctly explain कर दोची. Rayleigh's law, ना Planck's law of radiation, ना Stephen's law of radiation, ना Wien's law. आंसर कौन हो पिलाने? पहला Wien's law कौन है कौन बोलूँ? चले art to energy radiate दोची infrared region में. से स्पेक्ट्रम के प्लाने करेक्ट देउछि हमर 19 बुझि पालो दुआ नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि अरे पूर्व में जेटा क्वेश्चन छाटे ही पड़े असले की अरे अरे जेटा क्वेश्चन छाटे ही पड़े ओके लास्ट कर दो लास्ट में करे देला जेटा क्वेश्चन पूर्व में छाटे के पड़े असले मु ऑनलाइन करे जेटा क्वेश्चन ऑलरेडी छाटे ही पड़े असले सेटा के करबा ओके हम नेक्स्ट क्लास एटा ठीक है सेटा हम नेक्स्ट क्लास तापर कोन देखि तापर देखि पिला माने तापर कोन देखि तापर दिला टू स्फीयर सेल्फ मेटेरियल have radius 1 meter and 4 meter and temperature 4000 Kelvin and 2000 Kelvin respectively. Then the ratio of energy radiated per second at the first sphere that of the second is. मैंने कौन कोई चीज़ डीटा स्फीयर में देखी थी डीटा का सेम मेटेरियल टेंपरेचर थी कौन का टेंपरेचर 1 मीटर जंगर टेंपरेचर 4000 है जण को 4000 केल्विन टेंपरेचर रखी थी जण को में 2000 केल्विन टेंपरेचर रखी थी दैट ऑफ केल्विन द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड तो पिला माने से जो तन देखो से जो डीटा स्फीयर रहले से माने प्लान एनर्जी रेडिएट करिवे से जो फर्स्ट स्फीयर एनर्जी रेडिएट करूची और जो सेकंड स्फीयर एनर्जी रेडिएट करूची त रेशियो केता हो और देखिए हमको डीटा स्फीयर से जो समान मटेरियल में कैलिब्रेशन थी है दुई जन रेडियस रे रेशियो देखि 1 मीटर पर जेबे पचरे छी जो प्रथम स्फीयर था से 4000 केल्विन टेंपरेचर अछि और सेकंड स्फीयर था से 2000 केल्विन टेंपरेचर अछि हम समान जो एनर्जी रेडिएट करिवे तार रेशियो केते हमको बुझि पाबो तो को करियो देखो तो पिला माने हम स्टीफेंस एटा एठी हम से स्टीफेंस ले यूज करिबा तो स्टीफेंस लो हम पढि जति कोन पढि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड लिखिबा एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड एक सेकंड रे गोटे बॉडी केते एनर्जी रेडिएट करूची तो पिला माने सेटा हम कोन लिखि परिबा सेटा इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा A T टू द पावर 4 हम जानि छ जदि पिला हम समान मेटेरियल केटा नबा भरसी जदि हम जोबे समान मेटेरियल पिला माने लेछंती तार कोन समान रहिबे तार फिर सिग्मा रहिबा तार जदि मेरे समान मेटेरियल
समान मटेरियल में स्टीफेंस कांस्टेंट वैल्यूटा समान रही बुझी पाल तो समान मटेरियल जब हम ता पे कोन रहबो यार वैल्यूटा डिफरेंट समान रही बुझी पाल हला तापर हम कोन कहली से कोन दैछे हम तो दुईटा स्पीड दैछले जळकर रेडियस दैछे प्लान 1 मीटर जळकर रेडियस दैछे 4 मीटर हला तो हम ए लिखि देबा एनर्जी रेडिएटेड इज प्रोपोर्शनल विथ a t to the power 4 पिला माने से a t to the power 4 से प्रोपोर्शनल होबा बुझी पाछ तो जति हम एति बुझी पाल किंतु कोन दैछे जेतु दुईटा स्फीयर देछि हम जानि कि स्फीयर एरिया कोन स्फीयर एरिया में जानि 4 pi r स्क्वायर बुझे ना दैट मींस a इज प्रोपोर्शनल विथ r स्क्वायर एटा कहा सब प्रोपोर्शनल r स्क्वायर से प्रोपोर्शनल हम a लिखि परिबा इज प्रोपोर्शनल विथ r स्क्वायर t to the power 4 एबे देखो हमर जणाशुना पळे हम पिला ने दुईटा स्फीयर देछि जणकर रेडियस r1 हमको देछि के 1 मीटर सेकंड रेडियस r2 हमको देछि 4 मीटर ला प्रथम रे टेंपरेचर T1 हमको देछि 4000 केल्विन T2 हमको केते देछि रे 2000 केल्विन बुझिया तो से सब दिन जदि पके दबा ताले हम E1 by E2 पाइ हला हम E1 by E2 केते पाइ रे E1 by E2 इज इक्वल टू एति मुड़ी हमको T1 to the power 4 r1 square divided by T2 to the power 4 r2 square बुझिया r2 square एबे पले पके T1 हमरा मोर 4000 to the power 4 r1 केते रे r1 केते रे 1 मीटर 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 टू द पावर 4 गुणन 4 पे बुझि पालो हला एटा को भी काटे दबा केते पाइ जे माने 1:1 पाइ नकर एनर्जी रेशियो केते पाइ रे एनर्जी रेटेड रेशियो केते व्हाट इज क्वेश्चन इज क्वेश्चन इवन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो कोन दै छै नेक्स्ट क्वेश्चन दै छै अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समझने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कथा कहबा एंड द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा टू द पावर n ठीक अछि पर डेल्टा इज द डिफरेंस इन टेंपरेचर ऑफ द टू बॉडी हला देन द n इज इक्वल टू x तो प्लान से पूछ रहे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम जानि करबी द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी हला बॉडी केते रेट पर कूल करू छै द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा डिफरेंस हला ये मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का बताइए द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा टू द पावर मुझे डेल्टा थीटा पर डेल्टा थीटा डिफरेंस इन टेंपरेचर मतलब लाइक जो बॉडी लोग ना डिफरेंस टेंपरेचर डेल्टा थीटा देखो बच्चा ये जो एंड है इसे एंड हला एंड लो केते 2 ना 3 ना 4 ना 1 तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को कोन कहछि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहछि द रेट ऑफ कूलिंग डेल थीटा बाय डेल थीटा बाय डेल टी द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम कोन कहछि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहछि द रेट ऑफ कूलिंग माने डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी is proportional with change in temperature hala it is the difference in temperature of the body and the surrounding hala it is Newton's law of cooling hala it is Newton's law of cooling okay किंतु एट से क्वेश्चन ले कोन दै छै मो क्वेश्चन ले से दै छी del theta by del t is proportional with delta theta to the power n ताले ए दिटा को कंपेयर करी को एक केते ले ले एक तर कोन छै एक बुझि पालो तो आंसर मतलब देते हैं हमरा आंसर देते हैं आंसर के हमरे एक एक तरीके क्वेश्चन मतलब खुद ये क्वेश्चन संगे संगे हम करते हैं तापर इतना देखो ना तापर क्वेश्चन को जो लेखक बन देछि तापर क्वेश्चन जो है पूरा तेजी पढ़ते an electric charge 10 to the power -6 microcoulomb is placed at the origin okay on the xy coordinate system the 2 point b and q are situated at the √3, meter and √6, meter respectively and the potential difference between p and q is less तो पिला हम कोन दे छै ओके या देखि हम पकरे कोन अछि पिला माने ए जे हम जोटा कोन रखि छथि मने एमिति मिल छी एटा हमर कोऑर्डिनेट एक्सिस एटा हला हमर ओरिजिन टोटल 0,0 एटी कोन रखि छै एटी मु 10 to the power -6 माइक्रोकूलम चार्ज पेज हला आ एटी गोटे पॉइंट दे छै b एटा हमर पॉइंट b एटा हमर पॉइंट ए पॉइंट p रो कोऑर्डिनेट पता दे छै √3, द पॉइंट q दे छै तार कोऑर्डिनेट दे छै √6,0 हम कोन पूछल छै द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एट p and q विल बी लेस तबे कहैला ए जो चार्ज रखला या पे प्लेन ए पॉइंट रो गोटे पोटेंशियल थिबो हला ए पॉइंट रो भी पोटेंशियल थिबो मन कर ए पॉइंट रो पोटेंशियल हला p1 ए पॉइंट रो मन कर पोटेंशियल हला p2 तबे हमको से पूछल छै कोन रे ए माने भितर पोटेंशियल डिफरेंस केते हो हला त हम हमको से पूछल छै v1 - v2 इज इक्वल टू बुझि परबा हम से पूछल छै कि v1 / v2 इज इक्वल टू केते बुझि परबा अच्छा मन कर कहली ए डिस्टेंस मन कर प्लान r1 ए डिस्टेंस मन कर r2 यदि एति के हला
তাহলে এইটা যদি r1 r2 পিলা মানে হেলা তাহলে আমি সে কোন পচারতিলা রে v1 v2 পচারতিলা তাহলে আমি যদি এটি লিখিবা তাহলে v1 v2 তা কা সাথে সমান হচ্ছে মানে ফর্মুলা যদি পিলা kq/r1 minus kq/r বুঝি পার তাহলে আমরা লিখতে পারি যে v1 v2 kq/r1 minus kq/r1 r1 মানে এই দূরত্বটা তাহলে এই দূরত্বটা r1 r1 আমি যদি ভাগ করি r1 কত হবে পিলা ডিসটেন্স ফর্মুলা জানিছো ডেল্টা মানে √3 - 0 হোল স্কয়ার plus √3 minus 0 whole square और कितने में प्लान है 3 plus 3 में रूट ओवर माने √6 तो r1 कितने पाइबो √6 तो मतलब 8 प्लान बाहर करबो कितने होबरे √6 whole square और ये आपको हम जैसे बाहर करेंगे हम ये लिख पाएगा r2 r2 कितना √6 minus 0 square plus 0 minus 0 square और ऊपर हम कहते हैं कि से √6 तो r1 से भाग जाए फायदा r2 से पहले ये r1 प्लस r2 से समान है तो v1 माइनस v2 कितना है कि kq/r माइनस kq/r मतलब माइनस करते हैं मुझे ज्यादा माइनस कर दो भाई तो भाई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन p and q कितना पाएगा हमें 0 पर ऑप्शन नंबर सी है चलो ऑप्शन नंबर सी है करने करेक्ट कुछ करेंगे चलो बढ़िया क्वेश्चन ले हम क्वेश्चन रे आसले ना बढ़िया लगेगा अपन स्टेप क्वेश्चन आपने देखो कौन देखिए तो बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन atomic nucleus when z is equal to 50 of radius 9 into 10 to the power minus 13 centimeters काम करते कौन अच्छी पिला अच्छी काम करते कौन अच्छी आप करते पिला गुटे atomic nucleus अच्छी जो atomic nucleus रे z केते केते पता है तार रेडियस तो 9 into 10 to the minus 13 centimeter को एकांतर पोटेंशियल डिफरेंस केते पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केते पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला में कौन जाचे पिला kq/r बुझला kq/r तो कौन देछि k रे पिला में जानि छथि 1/4/epsilon0 तार के पिला 9 into 10 to the power 9 हला अब r केते देछि r देछि हमको 9 into 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर हला ताको अगर मीटर करिला केते होबरे 9 गुणन 10 to the power minus 15 मीटर हला अब हम कौन दरकार q दरकार कारण q केमिति पाइबे देखो हमको से जो एटॉमिक न्यूक्लियस देछि एटॉमिक न्यूक्लियस में z देछि 50 हला हम जानि z केमिति 50 कला हला इधर z केमिति 50 कला तार चार्ज केते होबरे मैं क्यू हमर हे किलो पिला माने 50 into e कारण जानि छै कोन चार्ज कितने z into e चार्ज केते पहले 50 e भाई तो पक्का ही और कहते हैं हमरा 9 into 10 to the power 9 q जगह लिख ले 50 e डिवाइडेड बाय 9 गुणन 10 to the power minus 15 एटा हे गला हमरा 50 9 5 पिला 45 गुणन 10 to the power 10 हला डिवाइडेड बाय 9 गुणन 10 to the power minus 15 गुणन प्लान e को हम लिख परिबा 1.6 into 10 to the power minus 9 বুঝি পারলো এটা তুমি যদি সিম্পলিফাই প্লান করবা তাহলে একটু তুমি যদি সিম্পলিফাই প্লান করিব কেতে আসবে বলে आंसर हमर ए আসবে पर्टिकुलर की इज इक्वल टू 8 into 10 to the power 6 बुझिला आंसर का আসবে মানে 8 into 10 to the power 6 मतलब पोटेंशियल तो हमरा 8 into 10 to the power 6 वोल्ट হবে তারপর क्वेश्चन चल এটা भी प्लान पड़े क्वेश्चन के कौन दिए मुझे टू चार्जेस 5 q और minus 2q are situated at point d a, 0 and minus 5 respectively ठीक है सी अब लंबा के दिख रहे चला एमिटा बुकला ले देछि चला एटा प्लान कोन 3a, 0 एटा मन कर प्लान 8 पॉइंट है minus 5a, 0 चला 8 है गोटे चार्ज 8 है रखते प्लान 5 किलोमीटर 5q चार्ज 8 में रखते minus 2q चार्ज चला ठीक है तो जब इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम स्फीयर ऑफ रेडियस 4 एम्पीयर हला तामे पावर फ्रॉम सतरे 80 गुटे स्फीयर दे सकते एटा स्फीयर पे तर रेडियस प्लान केते रेडियस ला 4 है रेडियस केते प्लान 4 है माने ए कोऑर्डिनेट केते हिते प्लान 4 0 ए कोऑर्डिनेट केते हिते बरे 0 4 ए कोऑर्डिनेट केते हिते -4 0 ए कोऑर्डिनेट केते हिते 0 -4 ठीक है तेरे पछारे ए जो अपने स्फीयर टा रहिला हला ए जो स्फीयर टा मनेली ए स्फीयर देखि प्लान केते इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करियो हला ए जो स्फीयर टा रहिला ए स्फीयर भीतर देखि केते इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करियो बाहर तो पिला माने बढ़िया क्वेश्चन टा बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे चमत्कार क्वेश्चन बढ़िया माने यदि एग्जाम रे आसीला ना बढ़िया जबरदस्त देखो तो पिला माने गोटे स्फीयर देखि केते इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करियो सेटा ने 262 पाइबे हमें गॉस लॉ पिला माने पाइछे गॉस लॉ कोन होइला
गोटे सरफेस लेके केते इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करबो दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट ताले हमें पढिसंती I इज इक्वल टू गॉस लो कहिसे हमकु q e बाय एप्सिलॉन नॉट बाय q बाय एप्सिलॉन नॉट कहली गॉस हम कहूची गोटे सरफेस लेके केते इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करबो दैट इज इक्वल टू q इनसाइड माने सरफेस भीतर केते चार्ज अछि डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एबे मते को एई जो सरफेस रहला एई स्फीयर ता रहला या भीतर को चार्ज अछि केवल 5 कूलम अछि एटा माने बाहर अछि माने ए चार्ज माने काउंट करिला नहीं भीतर की अछि केवल 5 कूलम 5 5 अछि केते हिदिबो 5 q बुझेला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केला रे 5 q बाय एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन पर दी ऑप्शन नंबर 3 तला छुआ पिला माने क्वेश्चन छुई पारिबेनी तला छुई पारिबेनी तो तला छुई पारिबेनी से खाली एफर्ट सर कैलकुलेशन करथबे किंतु कॉन्सेप्ट भी केते लेकिन कॉन्सेप्ट हमन भीतर तो चमत्कार कॉन्सेप्ट भीतर लुचि गई बुझि पालो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखते हैं प्लान इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय एति के प्लान देछि जेंदा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द एरिया इज गिवन बाय प्लान पढ़े क्वेश्चन कौन देछि देखो देछि प्लान माने हमके गोटे रीजन ले इलेक्ट्रिक फील्ड देछि केते देछि इलेक्ट्रिक फील्ड हम देछि 6 i क्या प्लस 5 j क्या प्लस 3 क्या बुझल जब पछरे छी फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया हमको एरिया केते देछि पिला हमने 30 i क्या मीटर स्क्वायर देछि यदि 30 i क्या मीटर स्क्वायर रहला i क्या मीटर स्क्वायर एरिया रहला एरिया भीतर केते इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझला एरिया भीतर केते इलेक्ट्रिक फ्लक्स डालछि सेही हमसे पछरे छी माने फेर इलेक्ट्रिक फ्लक्स करंट करते 5 इनवर्ड e डॉट सॉरी हमें प्लान कौन आंसर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू e डॉट a हमने देखा कौन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले से कर दियो इज इक्वल टू 6 i क्या प्लस 5 j क्या प्लस 3 k क्या डॉट 30 i क्या बुझे ना i क्या पूरा i क्या चला 1 0 पर 30 के तो मेरे से और i के देला से बुझे ना इसका ऑप्शन से आंसर फॉर से ऑप्शन नंबर सी So the electrostatic potential due to an electric dipole at a distance r there is a this. तो पिला माने गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल पाई हला गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल पाई हला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द डिस्टेंस हमरे केमिति करे करियो तो गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल पाई हला एट एनी पॉइंट एट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल तर फार्मूला कहले b is equal to 1 by 4 pi epsilon naught b cos theta divided by r square बुझिया एटा रहल फार्मूला हला हमर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस रहला तार फार्मूला है p इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught p cos theta divided by r square तो एटा मते देखि तो बीटा r स्क्वायर में केमि वेरी करछले b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 by r अब बीटा टर्म 1 by r स्क्वायर बुझि परलो आंसर पाइली पर ऑप्शन नंबर b एक को करेक्ट अब नेक्स्ट कौन देखिए These two charges q and 3q are separated by distance r in here तो बिना चार्ज 3q तो मैं air मतलब सेपरेट करेंगे at a distance x from the charge q the resultant electric field तो प्लान air एटा हला q एटा हला 3q हला समान तो मित्र ऑफिस होती समान दूर तक था तो दूर तक था तो इसे डिस्टेंस x from the charge q मतलब एटा वाला पॉइंट हला ए दूर तक x हम पेट पॉइंट b तो ए पॉइंट रे पिला माने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हला ए पॉइंट रे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 देछि तबे पछरे छै x रे बाहर कर ठीक अछि एठी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 माने तो एठी पिला माने एटा वाला चार्ज अछि एटा वाला चार्ज अछि एई चार्ज के पिला इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायरेक्शन रे पड़तो ताकि मन को ना e1 या पे पिला इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायरेक्शन रे पड़तो ताकि मन आबे छै e2 तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 माने e1 ला का संग समान हो रे e2 से समान एठे माने किए के समान हो तेटा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 माने e1 e2 कुछ पालो e1 के तो पिला माने k 3q डिवाइडेड बाय तो पिला माने 8 जदी पर x टोटल जो का तकला r 8 पे दिखला x और 8 पे कितने ही बने r - x लगाते हैं r - x तो k 3q डिवाइडेड बाय r - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितने ही पिला माने k * q डिवाइडेड बाय x पे कुछ पालो k के कटि गला q के कटि गला हला केतरे 3 बाय r - x रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय x पे तो 3 बाय r - x पर इज इक्वल 1 बाय x पे एबे जब मैं कोन एक्सपेरिमेंट सिंपलीफाई करन करियो चाहिए
मैं एमिति लिखि परिबा जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करबा केते परे r - x रो होल स्क्वायर हला इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बुझि पारबो जेटा हम रूट कोन नै दिबा कारण r - x खाली पाइ दिबा इज इक्वल टू 3x मतलब r केते हे दिबा हम x पटा दिला तो हला तो हम इनका मैं लिखि परिबा हला तो हम पाइ गेला r - x इज इक्वल टू 3x एबे तो हम एमिति सिम्प्लिफाई करबे एटा हमर इट लिख दूची एटा हम एमिति लिखि परिबा पे तो जरे x टा हम सेपरेट नै दिबा तो रूट 3x प्लस x इज इक्वल टू 1 x जरे कॉमन नै दिबा रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू 1 तो x के देखि दिबा r डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस x केते पाइ गेला हमें r डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस ऑप्शन नंबर सी हे गेला बुझेला ऑप्शन नंबर सी हे गेला तो करेक्ट आंसर समस्त ऑप्शन नंबर सी के वन एक्सेस नंबर next question on the method which is shortcut charge divided into two parts q and q minus q पिला माने हम लोग में q पर चार्ज मिला आपको मैं फाइनली दीजा छोटे-छोटे चार्ज कर दिले टोटल स्मॉल q टोटल कैपिटल q माइनस स्मॉल q ठीक है तो हाउ शुड द चार्ज q and q divided so that q and q minus q placed at a shorter distance but experience maximum electrostatic force तो बोला हम ये इसलिए आपको चार्ज को क्रॉस q तक में फाइनली प्रॉब्लम टोटल कैपिटल q का चार्ज तक किला ताको में फाइनली कोन करे स्मॉल q और कैपिटल q माइनस स्मॉल q चार्ज करे एबे कहला जदी से चार्ज बिटा में केते दूरता रखियो हला तापर कोन कहला से चार्ज बिटा में किछि दूरता रखियो हला किछि दूरता रखियो जहां पर कोन से माने मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे हला जदी से चार्ज बिटा में किछि दूरता रखियो माने मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करछथि ताहले माने सेति कंडीशन ना चलछि ठीक अछि तो हम पाखरे दीटा चार्ज थे गोटे अछि q गोटे अछि कैपिटल q माइनस स्मॉल q जदि एतकी हला ताला ए दिटा मन कर जदि x दूरता पिला के रखिले ताले फोर्स का फार्मूला कोन रे फोर्स इज इक्वल टू k स्मॉल q कैपिटल q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय x ये वाला लिखि बरे तो f को मैं लिखि बरे बेति तो पिला देख मतलब ए जो फोर्स टा रहले ए फोर्स टा मैक्सिमम हला इफ f इज मैक्सिमम ताले कोन करे df by dq is equal to the force maximum that and df by dq that is 0 हम लिखि परिबा that implies d by dq plus k by x square एटा को मैं तुम्हें लिखि परिबा q प्लस q minus q square is equal to 0 that means k by x square यार पिला मतलब डेरिवेटिव करबा q minus 2q is equal to 0 एटा प्लान नाही सब हला हे माने q minus 2q is equal to 0 that means q is equal to इसलिए अपन सप्लाई में कैपिटल q is equal to p तो जो कैपिटल q is equal to p एटा ला कंडीशन ए कंडीशन पिला माने कोन करे ए कंडीशन ले सेकंड को करे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वल टू एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम हला काजे का पिला माने एति कि पूर्व दुईटा क्वेश्चन थिला हला पूर्व दुईटा क्वेश्चन में छाडी देछि से डिग्री के पिला पढेबा हमें एति कि क्वेश्चन आज हम करबा आज पर कोन पिला 13 टा क्वेश्चन कवर करले से डिटा मतलब 15 के था आ से डिटा हम छाडी देछि पूरे हला एटा इजी अछि प्लान माने बुझे बुझे केमे करबे हला हम सेमिति करबे एटे कोन करबे मतलब when m1 gram of ice at -10 degree centigrade is added to m2 gram of water at 50 degree centigrade finally no ice left and the water is at 0 degree centigrade हमकर -10 degree centigrade ice थिले हला ता से कोन करले रे वो 50 degree centigrade वाटर को यदि आड़ कर कोन पर ये पिलाने हीट दबो ये हीट दबो तो ये हीट देला देला पे कोन है से कहले इतने हीट देला ये तो पिलाने हीट दबो कोन पर ठीक है -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को प्रथम कन्वर्ट हो तापर कोन हो पिलाने से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को कन्वर्ट बुझि पाल पिला एबे से कहिछि कोन कहिछि कहले हमर ए जो हम जो आइस लेथिले m1 ग्राम रो आइस लेथिले तार m2 ग्राम रो वाटर मिसेथिले जहा पडले कोन हेता ए जो आइस पिला लेथिले सब आइस को पडिछि वाटर को पडिछि से मते लेछि ए सब ग्राम आइस लेछि वाटर को कन्वर्ट हेछि हला आ से वाटर केते सेंटीग्रेड टेंपरेचर अछि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर तबे पिला माने ताहले पचाछि कोन द लैटेंट बीट ऑफ आइस इज ना ताहले आइस में जब लैटेंट बीट करबा आइस में लैटेंट बीट का एबे देखो कोन कहली ना 50 डिग्री सेंटीग्रेड रो वाटर थिला
ताको मिसेले -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस संगे प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर थिला से कोन कर हीट पिला माने दबो ए जो आइस को थिला से हीट नबो से हीट दबा नबा भितर कोन हेतरे ए जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस थिला तार टेंपरेचर बढ़ी गयो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस प्लस देन से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को ଆଉ ସେ କହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯେତିକି ହିଟ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ହିଟ୍ ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଆଇସ୍ କଣ ହେଇଛି ୱାଟରକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିଗଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ହେଲା ଏ ଯୋଉ କୁଲାଣ୍ଟ ୱାଟରଟା ଯେତିକି ହିଟ୍ ଦେଲା ଆଇସ୍ ସେତିକି ହିଟ୍ ଦେଲା ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ହିଟ୍ ଗେନ୍ ବାय ଆଇସ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହିଟ୍ ଲଷ୍ଟ ବାय वाटर प्लांट ଯେତିକି ହିଟ୍ ଦବ ଆଇସ୍ ସେତିକି ହିଟ୍ ନବ कि आइस केते हीट गेन करता देखो प्रथम से -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्लास इला एटा एमएस डेल्टा थीटा आमे से लिखि परिबा यार m1 का हमरा आइस देखियो तो m1 हला स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हम केते रेचरे प्लांट 0.5 गुणन 0.5 गुणन डेल्टा थीटा -10 0 0 10 प्लस पिला माने एठी कोन हिचरे आइस पे से वाटर हिच माने एठी लैटिनिटी आसी गला तो पिला माने पुनी हम लिखबे m1 गुणन लैटिनिटी माने l हला इज इक्वल टू ये जति हीट दला ये केते हीट दला पिला माने m2 गुणन यार आइस वाटर स्पेसिफिक हीट केते वाटर स्पेसिफिक हला 1 गुणन 1 गुणन डेल्टा माने 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड माने 50 एटा लिख करबा केते पिला रे 5m1 10m1 l इज इक्वल टू 50m बुझि पर तामे लिख परबा m1 l इज इक्वल टू 50m2 minus 5m1 एठे हम l तने केते लिखि परिबा रे 50m2 minus 5m1 divided by m1 ताका केमिति लिखि परिबा 50m2 by m1 minus हला 50m2 by m1 minus 5 पूरा प्लान मैच कोइ दिला ऑप्शन नंबर ए प्लान मैच करि जल्दी ऑप्शन नंबर ए तो केते इजी क्वेश्चन हला पूरा सस्ता सुंदर मछली क्वेश्चन दिला तो सके से आंसर करने को बुझी पारलो हला या पर क्वेश्चन खाली बुझे रहउची विश्लेषण तो हम नीचे पर करे ए जे कोन आइस -20 डिग्री सेंटीग्रेड हला इट added to 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है when the temperature of the mixture between 0 degree centigrade it is found that 20 ग्राम of ice is converted to the amount of ice added प्लान कहले कोन कहते देखो पल से क्वेश्चन बुझे कोन दिस हला हम पाखरे -20 डिग्री सेंटीग्रेड रे किछि आइस थिले मु कहली मन पर m ग्राम आइस मो पाखरे पिला माने m मन कर -20 डिग्री सेंटीग्रेड रे मो पाखरे m ग्राम आइस हला ता संगे कोन कहली ता संगे मु 40 डिग्री सेंटीग्रेड रे वाटर को मिसेली हला मो पाखरे एतरे 50 ग्राम रो वाटर थिला 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताको मिसेली मिसेले कोन हो ये प्लान हीट दबो ये प्लान हीट दबो हला बुझी पर से कहला एटा को मिसेला परे देखा गला 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे कोन अछि प्लान ने से कहला एटा देखा में देखले जते बड़ा टेंपरेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हे गला जतबे टेंपरेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हे गला हमें देखले कोन रे आपुडे 20 ग्राम रे आइस गुडाने लेयर केमिति रहि जाय हला से कहला 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमें देखले 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमें देखले हमें देखले कि 20 ग्राम रे आइस आपुडे प्लान में लेयर केमिति ऑल लेयर केमिति रहि जाय ताहेले इनिशियली हमें केते आइस नेले बाहर ताले इनिशियली हमें केते आइस नेले बाहर करो कांसेप्ट कोन सेम कांसेप्ट पके हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय प्लस से कांसेप्ट को केना सॉल्व करियो सॉल्व कला परे और आंसर केते इसमें तुम हला एटा नंबर एटा में सॉल्व कला परे ऑप्शन नंबर डी 40 ग्राम पिला ने आसीबो आंसर तो 40 ग्राम तमने देखियो तुम आसुची कि नै तुम देखियो दिस इज द होमवर्क एटा में तो बोलना आज क्लास में हम एक क्वेश्चन डिस्कशन कले पुनी हम जो नेक्स्ट क्लास रे आउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलना नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करेली दूसरा क्वेश्चन तो ऑलरेडी अछि तो से पर्यंत मैं पढ़े था हला पाठ पढु था पुनी हम देखो नेक्स्ट क्लास